वहाँ की इतने किस्से हैं, एक आध किस्सा हो तो बताऊं, इतने हैं कि पूरी एक किस्से में फिल्म बन जाएगी। तो मोहित चौहान के लिए मैम ने कहा कि अगर मोहित चौहान नहीं गाएगा हरीश तो ये गाना मैं नहीं दूंगी, गाना मोहित चौहान नहीं गाएगा। तो मैंने सबके सामने बहुत जोर से कहा था कि बहुत बड़ा रीजन है इस फिल्म को करने का कि रघु जी के साथ मैं काम करना चाहती थी और वो तमन्ना मेरी पूरी हो गई। सर के हाथ में कुछ भी आ जाता था तो उसका बाजा वो बना देते थे, जैसे स्ट्रॉ आ गया या कुछ भी आ गया तो उसकी बांसुरी बन जाएगी। Can I please have the producer of the film, Kuku Mohanka, on the stage? And you have some fan following now. Let me tell you a little about her. Hailing from a traditional industrialist Marwari family, business runs in her blood. A pioneering and fearless entrepreneur starting off at the age of 19. She has since ventured into real estate, manufacturing and investments, creating an empire of her own. She has now ventured into the film industry and has her own production house, Aeon Entertainment. So Yatris is her debut film as a producer. Ladies and gentlemen, Kuku for you. Alright, up next, I would like to call on stage the guy जिन्होंने की इस फिल्म में जो देखा वो हम सभी लोगों को आज दिखाई दे रहा है. The producer is right here and now I would like to call on stage the director of the film, Harish Vyas. An Indian writer and director who's known for his works in Punjabi and Hindi film industries. He of course rose to fame with his maiden directorial venture, Proper Patola. The 2018 release Angrezi Mein Kehte Hain was also his debut into the mainstream Bollywood cinema, and now he's here with Yatris and we loved the trailer. So thank you so much for the film and please have a seat. अब मैं जिनको स्टेज पर बुलाने वाली हूँ इनके बारे में मैं जितना कहूँगी मैं कम ही होगा, मैं छोटी ही रहूँगी और ये मुझसे ओहदे में बहुत बड़े ही रहेंगे. तो जोरदार तालियां हो जाए रघुवीर यादव जी के लिए. You've seen him in Lagan, you've seen him in Peeply Live, you've seen him singing songs, you've seen him making people laugh, you've seen him making people cry, and now you are going to make him people relate to his character with the film Yatris. Thank you so much, sir, यहाँ पर आने के लिए. Alright, अगली मैं यहाँ पर स्टेज पर बुलाना चाहूंगी उन्हें जिन्हें हम इतने सालों से फिल्म इंडस्ट्री में काम करते देख रहे हैं. Be it her dramatic roles or the comedy ones which are my favorite. Ladies and gentlemen, put your hands together for Seema Babaji. She's acted in a few of uber successful Hindi language films like Bareilly Ki Barfi, Ram Prasad Ki Tervi, Shubh Mangal Zyada Savdhan, Badhai Do and Dam Laga Ke Haisha, and she's also the recipient of many Filmfare Awards. Thank you so much for joining me on stage. Alright, मैं यहाँ आती हूँ. अगले मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी एक ऐसी एक्ट्रेस कम पर्सनालिटी को who is one of the fastest emerging Indian influencers, and she has the talent that I don't think anybody else in the country has except for her own father. So I think, if there's somebody who could take it one notch higher, it was you, Jamie, and this is such a big compliment I have to tell you, so let's have Jamie Lever on stage. We've seen her acting in Bollywood films like Houseful 4 and Kiss Kiss Ko Pyar Karu, and now she is here as a part of Yatris. I'm a big fan. Yeah. So are all of us, right? Alright, up next, Anurag Malhan. Can we have you on stage? Anurag Malhan is not just an upcoming Indian actor, model, but also a sports person. And Yatris is Malhan's Hindi feature acting debut. We've seen him before this on television. So he's also a state-level cricketer. So I'm so happy to have you here with us this afternoon. And last but definitely not the least, can we please have on stage Chahat Khanna. We've loved her on television as Aisha in Bade Achhe Lagte Hain, as Kajal, as Ashka Wadhwa, and now you are going to see her as Sonam in Yatris, the very ravishing Chahat Khanna on stage. I request you all to please take your seats. कुकू जी, मैं सबसे पहले आपसे ही कुछ सवाल करना चाहती हूँ. ये ना मेरा पर्सनल सवाल है, so please don't beat up your team for it. They have not told me to ask you this, but when are we going to see you on screen? I think you have the perfect personality, doesn't she? Right? We do agree, right? Maybe as a cameo.
I think if you it's going to just आग हो जाएगा यहाँ पर, जैसे just आग लगा दो, कब होने वाला है प्लीज बताइए, और माफी अगर मैंने कुछ गलत बोला. Hi everyone, I'm very happy to see all of you here and to be a part of our film and my team of course. And regarding doing a role, okay, surprise, wait and see the film. अरे ये तो कुछ सीक्रेट बाहर आई है. चलिए इसको सीक्रेट ही रहने देंगे, आपका रोल को राज रहने देंगे. और एक्चुअली जेन्युइनली आई वांट टू नो दिस फ्रॉम यू कि एक मिडिल क्लास फैमिली एंटरटेनर, ऐसा क्या था इस फिल्म में या स्क्रिप्ट में दैट मेड यू डिसाइड ऑन दिस कि हाँ इस फिल्म के साथ हम शुरू करेंगे, डेब्यू यही करेगा हमारे प्रोडक्शन हाउस का. What's happening in the industry is they're making a lot of films which are to do with a lot of action, right? Too much of fighting, and really missing out on the really family dramas. Absolutely. And the issues in the family today. So we thought it would be something really good to bring out to the public, and bring it out especially to show how a family can get together, because there's so many issues these days. So it is close to my heart actually. I felt related to it, So I thought that would be the first film, and it would be good because it would relate to the masses also, और म्यूजिक, मैं खुद बड़ा म्यूजिक से बड़ा ताल्लुक रखता हूँ और बड़ा अच्छा लगता है. और ख़ास तौर पे जब हमारे साथ में रघु शर्मा जो खुद इतने अच्छे म्यूजिशियन हैं, सीमा जी जो और जैमी इतना अच्छा गाती है, तो पूरी टीम ही हमारे पास ऐसे म्यूजिशियंस की थी. और सब मैम को गाने पसंद है ओल्डीज, और मुझे खुद ही बड़ा शौक है पुराने गानों का जी. तो मेरी जो पहले भी फिल्में थी उसमें भी एक थोड़ा म्यूजिक एक अलग तरह का था. अंग्रेजी में कहते हैं, हमने ठुमरी यूज की थी, सब चीज़ें की थी. तो इसमें भी जो हमारा म्यूजिक था तो हमने सोचा कि हम कुछ डिफरेंट भी सिंगर भी ट्राई करते हैं. हमने नए सिंगर्स को भी चांस दिया है, नुपुर पंत, और जैसे मैम ने उनको कहा कि नहीं अगर कोई अच्छा टैलेंट है तो उसको आप आगे लाइए, तो विच इज वेरी गुड. तो उसमें हमने नुपुर पंत को भी गवाया है साथ में. और अभी रोहित जी भी हमारे सामने बैठे हैं, उनका भी एक गाना है बड़ा खूबसूरत, दिव्या कुमार ने गाया. एक गाना था जहाँ पर हम चाह रहे थे, गाना बेसिकली हम चाह रहे थे जो गाना है थोड़ा है थोड़े की जरूरत है जी, जिंदगी यहाँ फिर भी खूबसूरत है. तो वो गाना हम चाह रहे थे, लेकिन वो राइट का इशू था. तो हमने कहा हम उससे मिलता जुलता कुछ गाना बनाते हैं. हमें लगा कि उसको कौन गा सकता है, तो किशोर साहब के अलावा वो हमें लगा कि उस आवाज को जो है अमित कुमार बहुत जस्टिफाइड करेंगे. तो हम अमित कुमार जी के पास पहुंचे और उनको बड़ा अच्छा लगा सुन के कि चलो आप गवाना चाहते हैं गवाइए. तो वो गाना बहुत खूबसूरत बना और बहुत अच्छा कंपोज हुआ, बहुत अच्छा ट्यून है, बड़ा रेट्रो फील है उस गाने का. तो अमित कुमार हैं, मोहित चौहान मेरी पहली फिल्म में गा चुके हैं, तो मोहित चौहान के वैसे ही बहुत फैन थे. और मोहित चौहान के लिए मैम ने कहा कि अगर मोहित चौहान नहीं गाएगा हरीश तो ये गाना मैं नहीं दूंगी, ये गाना मोहित चौहान नहीं गाएगा. तो ओवरऑल जो गाने हमारे म्यूजिक वाकई फिल्म से रिलेटेड हैं, फिल्म से बाहर कोई गाना नहीं है, जैसे फिल्म को कहानी को आगे बढ़ाते हुए गाने. ना आप अभी भी मुझे दिखा दिया, आपके ना एक पर्सनालिटी ट्रेट है, आप लोगों को हंसते हंसते रुला सकते हैं और रोते रोते हंसा सकते हैं. So that's like a huge thing that you do. इस फिल्म में क्या कर रहे हैं आप, लोगों को रुला रहे हैं कि हंसा रहे हैं? पता नहीं मैं लोगों को क्या करवा रहा हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन मैं दोनों हंस भी रहा हूँ, रो भी रहा हूँ. आप हंस भी रहे औरों को पता नहीं है. रुला कौन रहे हैं आपको? सीमा जी रुला रही है कि बच्चे रुला रहे हैं? ये इनकी बात नहीं, ये हंसाएंगी मुझे कभी. अरे ये हंसाएंगी, मेरे बगल में बैठे मुझे, हरीश भाई आप इधर आई, मुझे उधर. ये तो बदले को उतारू है. हे भगवान, सीमा जी हमें जानना है क्या बदला लेना चाहती हैं आप रघुवीर जी से? मुझे बदनाम कर रहे हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, इतने सालों से मुझे देख रहे हैं, मेरे जैसी कोई शरीफ औरत होगी. ये मुझे खामखा परेशान कर रहे हैं. और हंस माइक में रहे हैं जिससे उनकी हंसी सुनाई दे. पहले आप शरीफ का अर्थ बता दीजिए मुझे. नहीं, वो मेरी ऑडियंस जानती है मुझे अच्छी तरह से. मैंने आज तक कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं जिसपे मेरी ऑडियंस नाराज हुई है मुझसे. आप खामखा का इल्जाम मुझ पे नहीं लगा सकते, वोटिंग ज्यादा मिल जाएगी मुझे. ओहो, हमें दिखाई दे रहा है. आई थिंक इसका शॉट लेकर के मूवी में कहीं बीच में फिट कर देना चाहिए, बिकॉज वी कैन सी दैट केमिस्ट्री हैपनिंग राइट हियर. द वर्क हस्बैंड एंड द वर्क वाइफ वैसे बन जाते हैं ना. रघु जी मुझसे बहुत सीनियर हैं और बहुत ही कमाल एक्टर हैं और मैं बहुत बड़ी फैन हूँ.
और हम जब शूटिंग के दौरान हमारी जब बातचीत हुई कि कौन किस वजह से इस फिल्म को करने के लिए ज़्यादा उत्साहित था, तो मैंने सबके सामने ये बहुत ज़ोर से कहा था कि बहुत बड़ा रीज़न है इस फिल्म को करने का कि रघु जी के साथ मैं काम करना चाहती थी और वो तमन्ना मेरी पूरी हो गई। क्या बात है, ये तमन्ना मेरी भी थी सर कि मैं एक दिन ऐसा शो होस्ट करूं जब आप साथ में हो, और आज मेरी भी तमन्ना पूरी हो गई। अच्छा जेमी, आपसे हम जानना चाहते हैं जैसा कि सब लोग जानते ही हैं, and I'm sure you are also aware of it, the moment we imagine you, we think of you, we think comedy. Because it just comes naturally to us, and also all those expressions that we can make, nobody else can. But you're not playing a comic character in the film, right? How difficult was that? I'm not. Actually, that was the biggest challenge for me, to not do what comes naturally to me. That's right. ठीक है, एंड इसमें सर ने मेरे लिए सोचा, ये कैरेक्टर वाज लाइक अ शॉकर फॉर मी, एंड ही वाज वेरी कन्विंस्ड कि जेमी कर पाएगी। तो जब उन्होंने मुझे नरेट किया था, ही सेड मुझे पता है जेमी कि बिकॉज जो लोग कॉमेडी कर सकते हैं वो इमोशन को अच्छी तरह से समझते हैं, एंड वो लोग सीरियस मतलब पोर्ट्रे कर सकेंगे। सो ही वाज वेरी कन्विंस्ड, तो आई वाज कन्विंस्ड लुकिंग एट हिज कन्विक्शन behind this character for me. So I'm thankful sir कि आपने मेरे लिए सोचा, and people will see me in a different light, so I feel very very happy. Firstly, this is a big moment for me. मैंने कभी अपने आप को पोस्टर पर नहीं देखा, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हम एक्टर्स तो शायद मुझे लगता है ज़िंदगी का हमारा हिस्सा बन चुका है कि हर फिल्म की यात्रा को हम एंजॉय करते हैं, और इसका तो नाम ही यात्री था, तो इसमें तो ऑब्वियस से यात्रा कर रहे थे हम लोग। और जैसा कि आपने देखा ही है कि ये जो एक सब्जेक्ट ही ऐसा है कि बनारस टू बैंकॉक, तो वो भी एक बहुत अच्छी जर्नी रही हमारी और बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा। और हम फैमिली हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक फैमिली ट्रिप में गए हुए हैं, और फिर बाद में कुछ दिनों तक हम मिस करते हैं, उसके बाद हम फ़ोन भी नहीं करते एक दूसरे को। नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया एक्चुअली। जैसे आपने ट्रेलर में देखा, हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, टूरिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और यहाँ वहाँ शॉपिंग कर रहे हैं। बिल्कुल शूटिंग के बाद हम वही कर रहे थे, मैं और मैम बस निकल पड़ते थे, शॉपिंग करते थे, बार्गेन ढेर सारा हमने किया, बहुत बार्गेन किया, बहुत शॉपिंग की, और सर की भी हमने काफ़ी शॉपिंग कराई साथ में। और सर के साथ बहुत ब्यूटीफुल और स्वीट मेमोरीज थे। सर के हाथ में कुछ भी आ जाता था तो उसका बाजा वो बना देते थे, जैसे स्ट्रॉ आ गया या कुछ भी आ गया तो उसकी बांसुरी बन जाएगी। तो इस तरह की मतलब छोटी छोटी चीज़ें थी, एंड इट वाज रियली फन टाइम टुगेदर। जैसे मेरा मानना है कि हम कभी भी किसी यात्रा जर्नी पे निकलते हैं, वो हमें कुछ सिखा के जाती है किसी ना किसी रूप में। तो मेरी यात्रा में मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि सिखाने वाले बहुत दिग्गज लोग थे, और अगर आप सीखने के लिए रेडी तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सीमा जी, रघु सर, इन सब से बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब बिना बताए मैंने चुपचाप इनसे कुछ ना कुछ सीखा है, और मेरे सबसे बड़ा अनुभव ये रहा, और बहुत मज़ा आया सबके साथ काम करके। सभी ने कुछ ना कुछ सीखा, अनुराग ने, चाहत ने, जैमी ने, हमने बहुत इंजॉय भी किया। जैसे मैम ने कहा कि हम एक फैमिली की तरह बन जाते हैं और वो फैमिली रह जाती है, तो बहुत मज़ा आया सीरियसली। ऐसे ही मुझे भी बहुत मज़ा आया। जैसे बनारस में तो हम इतना इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारी बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे थे। जब हमारा सेकंड फेज आया बैंकॉक का, तो सबसे अच्छा था। शॉर्ट के बीच में मैं और रघु सर मसाज करा रहे हैं, रात को पार्टी कर रहे थे। ऐसा तो सीन था मसाज, कैसे नहीं मसाज करा रहे थे। अच्छा, तो उस दिन शूटिंग में इसलिए लेट आए थे आप लोग मसाज करा रहे? नहीं, I'm talking about foot massage। और वैसे भी वो एक सीन था मसाज का। हाँ, तो काफ़ी अच्छा लगा। और सीमा मैम से भी मुझे सीखने में बहुत अच्छा लगा। सीमा मैम एक तरीका है मैम का कि डांट के बहुत प्यार से बेस्ट निकलवा देती हैं। जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा कि जो मेरा पहला शॉट था कि है नहीं था, तो मैं बड़ा आराम से बोल रहा था, तो मैम ने एक देखा, दूसरा शॉट देखा, कहती नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा हाई पिच करके बोल। तो छोटी छोटी चीज़ें मैम ने बड़े प्यार से मुझे सिखाई, और मेरी आगे की फिल्मों में मुझे बहुत काम आएगी। जेमी एज वेल, कॉमिक टाइमिंग तो थी, बट जेमी के साथ बिना कॉमिक टाइमिंग वाली चीज़ भी मुझे सीखने को मिली। रघु सर ज़्यादा बताते नहीं, बट आंखों आंखों में कहते हैं ठीक है, हो गया। पहले वाला सीन पड़ा था, मैंने कहा जी, इसके बाद वाला मैंने कहा जी, बस क्या दिक्कत है। इट वॉज गुड। चाहत और मेरे इंटरेक्शन 3-4 दिन का बहुत अच्छा था। हमें बोर्ड पे छोड़ दिया था और पीछे शॉट चल रहा है, करो। मैंने कहा सर क्या करें? I mean it's a love song. I mean you do something. मैंने कहा सर बोर्ड में क्या करें? It was good. हम दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट करके एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। और हरीश सर
के साथ मेरी दूसरी मूवी है जो रिलीज होगी सेकंड। हरीश सर और मेरी टाइमिंग मतलब सर के साथ काम करके इतना अच्छा लगता है, सर को मेरी वो नर्व्स पकड़ में आ गई है, तो सर प्यार से पता भी नहीं चलता कि आपने कब अच्छा शॉट दे दिया कब खराब दे दिया, वो बता देते हैं और शूट पूरा हो जाता है। आप लोगों से ये भी जानना चाहेंगे कि इंडिया में, हाँ पहले आप बोल दीजिए। It was a good, very good experience. In fact, बनारस में मैंने बहुत ज़्यादा जंक फूड खाया जो किसी को नहीं पता है। I think मैं अकेले निकल गई थी अपनी टीम के साथ। And बैंकॉक में हमने बहुत मस्ती की। Just like I said कि हम रात में अक्सर बैठ जाते थे, मंडली जमाते थे अपनी और गाने गाते थे। So that was great fun. It was a overall very good experience, learning experience रहा है मेरा। बहुत अच्छा सीखा है मैंने, being an improvising actor सीखा है मैंने यात्री से, so that's what I'm taking back home and overall it was very good experience. इंडिया में यात्रा करने का अलग ही मज़ा रहता है, तो आप लोगों की कोई मेमोरेबल जर्नी है कुछ इंडिया में ट्रेन से ट्रैवल करने की या कहीं पे भी? पर्सनल लाइफ में हम सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ट्रेन तो हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा रही है, फ्लाइट तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बाद में आई है। हम पहले वही लोग थे जो ट्रेन में बिना टिकट के भी हमारी फैमिली जाया करती थी, और जहाँ भी जगह मिले थोड़ा सा बिस्तर बिछा लिया, बच्चों को सुला दिया, और ट्रेन से उतर के सुराही भरना और घर से बनी हुई पूरियाँ और अचार खाना, वो हमारी ज़िंदगी रही है। तो हम देखते देखते यहाँ तक पहुँचे कि आज हम फ्लाइट की बात करते हैं और हम दूसरी दुनिया की बातें करते हैं, पर हमारे रूट्स तो वही हैं और सबने, मुझे लगता है सभी ने वो चीज़ें एक्सपीरियंस ली हैं और शायद इसी वजह से ऐसी फिल्में आज भी बन पा रही हैं। जी बिल्कुल। बट मैम एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है। मैंने कहीं हॉलीडे में कभी कर नहीं पाई हूँ विद माई फैमिली, बिकॉज मैं जब छोटी थी तो डैड बहुत ज़्यादा बिजी होते थे, तो हमने कभी इंडिया में तो हार्डली कुछ ट्रैवल किया होगा। शायद डैडी अगर शूट पे जा रहे हैं तो उनके साथ हम कहीं गए होंगे, लेकिन मैं कभी छुट्टियों पे नहीं गई इस तरह से। तो इस फिल्म के जरिए मैंने ये एंजॉय किया, यू नो, प्रॉपर हॉलीडे विद माय फैमिली। और ये ट्रूली मेरी मम्मी थी, ये मेरे डैड थे, और मुझे वो एक्सपीरियंस मिला। सो थैंक यू सर। वो लगता था देख के क्या ना बात कि एकदम। But I'll say one thing here. मैंने बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस किए हैं फैमिली के साथ ट्रेन में जाने के लिए, गाड़ी में यात्रा करने के लिए, क्योंकि जैसे शिवा जी ने कहा पूरी अचार सब्जी सब बांध के हम लोग लेके जाते थे और पूरी फैमिली हम लोग ट्रेन के साथ जाते थे। वो हम आज तक हम मिस करते हैं, क्योंकि वो जो यात्रा होती है ना, वो हरदम सबको एक बहुत क्लोजनेस, बहुत नज़दीक ले आती है फैमिली को, और वो आज बहुत मिसिंग है कि किसी के पास टाइम नहीं है, सब फ्लाइट्स पर जाने मांगते हैं, यू नो। सो आई थिंक दिस मूवी विल डेफिनेटली bring back a lot of closeness, family closeness, and lot of values back, you know, hopefully. सीमा जी ने खाने की बात की, मुझे याद आ गई एक चीज, खाना, अचार, रोटी। पहले लोग थिएटर में भी रोटी सब्जी लेके जाते थे क्योंकि वो खाना इतना होता नहीं था थिएटर में। मुझे याद है कि मम्मी हम सब जाते तो जैसे किसी को खुलता था इंटरवल में, तो पूरे थिएटर में उसकी अचार की खुशबू आ जाती थी। पर काफ़ी सारी फ्लाइट ऐसे जो अहमदाबाद टू बॉम्बे आती हैं, वो काफ़ी ट्रेन का एक्सपीरियंस दे देती हैं क्योंकि काफ़ी मैंने देखा है आसपास से फावड़ा नमकीन जाते हुए, तो बड़ा अच्छा लगता है कि ये लोग, ये भी ट्रेन की एक फीलिंग यहाँ पर भी आ जाती है। लेकिन आजकल की ट्रेन का जो सफ़र है तो वो मज़ा बिल्कुल नहीं दे पाता। उसकी वजह ये है कि मैंने तो बिल्कुल एक्चुअली इन ट्रेनों में वो कोयला मिस करता हूँ मैं, जो आँख में जाता है, जो जो बिल्कुल खुले होते थे, कोयला ज़्यादा जब घर पहुँचते बिल्कुल कोयले के रेशे जो दिमाग में घुसे होते थे, उनको छुड़ाने में बड़ा मजा आता था। मतलब उसके बाद 3-4 दिन तक नहाते रहिए, लेकिन वो ट्रेन नहीं जाती थी दिमाग से। तो वो मज़ा अभी मिस करते हैं हम, जब ट्रेन में कभी जाना पड़ता है, क्यों उन दिनों एसी तो हुआ नहीं करता था, हम ऐसे ही गुजर जाते थे। और यकीन मानिए, जब मैंने ब्रेकफास्ट कभी नहीं किया था अपनी लाइफ में, हम तो कलेवा करते थे। पहली बार ब्रेकफास्ट नाम मैंने ट्रेन में ही सुना था। तो ये वो सब है ट्रेन की यादें, जो जर्नी जो हुआ करती थी, और बहुत की है मैंने। तो मैं बिल्कुल बताया, मैंने खाना बदोशों वाली जिंदगी जी है, तो ट्रेन तो अक्सर आए दिन
रहती थी ट्रेन या बस या जो भी है, तो कोई किसी से कम नहीं था, ना ट्रेन कम थी ना बस कम थी, सब में। मैंने तो बिहार में भी खूब सफर किया है, जो छत पे चढ़ के, और ट्रेन में अंदर जगह होती थी, लेकिन गर्मियों के दिनों में हम छत पे चढ़ जाते थे। और वहाँ की इतने किस्से हैं, एक आध किस्सा हो तो बताऊं, इतने हैं कि पूरी एक किस्से में फिल्म बन जाएगी।